Okay, so today we are learning this very important topic, that is three-dimensional structure, three-dimensional structure of the protein. Then we have to learn RCSB, PDB, and then we have to learn process for three-dimensional structure, protein structure determination. Okay, as we all know that protein has been classified structurally into majorly into the four parts: primary, secondary, tertiary, and quaternary. So, as we all know, what is a primary? It's the amino acid sequence. In a secondary structure, we know there are two major structures comes as alpha helix and beta pleated sheath. Okay, beta pleated sheath or beta sheaths. Okay, these are the two secondary structures. Along with this, you will also see some more words like terms and loops. Okay, these are the very important words which comes into the secondary structure: alpha helix, beta pleated sheath, turns and loops. Okay, so then comes the tertiary structure. Tertiary structure is actually an architecture. Okay, it's an architecture. As you can see, alpha helix and beta pleated sheaths, these are actually the class. हमने कैथ देखा था ना, कैथ के अंदर जो क्लास है एक्चुअली वो है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, विच गिव्स यू द क्लास. इट्स अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, देन आर्किटेक्चर इज basically a tertiary structure which gives you the real shape of the protein. Okay, real shape of the protein. And along with this two alpha helix and beta pleated sheath, there are turns and loops are also there, which also gives the shape to the protein. In a secondary structure, as we all know, those are the structures formed by all the amino acids to give you a desired alpha helix and beta pleated sheath brought about by hydrogen bonds. While tertiary structure, it's a very close structure again formed by the protein by the combination of alpha helix and beta pleated sheath by involving other bonds like van der Waal, ionic, electrostatic, likewise. So those will give you a tertiary structure. And then lastly comes the fourth, quaternary. Quaternary structure is a combination actually. It's a combination of more than one polypeptide. Okay, more than one polypeptide. If more than one polypeptide combines, then it becomes a polypeptide, right? Uh, if more than one polypeptide combines, it gives you a quaternary structure. So quaternary structure will always show you more than one polypeptide attached with each other. Okay, in a quaternary structure, you will see proteins in two forms. Okay, you will always see proteins in two forms if they are in a quaternary structure known as homopolymer, okay, and heteropolymer. Okay, so in quaternary structures, you have two types of proteins again. One is homopolymer and another is a heteropolymer. As the name suggests, what is a homopolymer? In which all all polypeptides, all polypeptides are of same type. Okay, and in heteropolymers, at least one polypeptide must have a different origin, means more than one polypeptide of same type, of different type must be there in a heteropolymers. Okay, so this we have learned. We know primary amino acid sequence, we know secondary alpha helix and beta pleated sheath. It also involves turns and loops, but they have not been classified into a secondary structure, keep in mind. Okay, but we are calculating them in the secondary structure because they are very important to give a secondary structure of alpha helix and beta pleated sheath. Turns and loops doesn't have any particular structure as compared to alpha helix and beta pleated sheath. That's why we are not categorizing them into the secondary structure. Clear? This is very important. Alpha helix and beta pleated sheaths are having a very defined shapes and sizes, while turns and loops are random in their shapes.
they are just the connecting link between the alpha helix or alpha helix with beta sheath. That we will learn in a structure so that you will be able to understand. Then these are all the structures formed as a secondary structure because of the hydrogen bonds. Once along with the hydrogen bond, if some other bonds are also getting involved like ionic, van der Waal, then it will give you a more detailed architecture that is known as tertiary structure. Tertiary structure is a very compact kind of a shape of the protein which gives you a real functional unit of the protein. And keep in mind tertiary structure is always made by the single polypeptide. It doesn't have more than one polypeptide. Clear? But if your protein is having more than one polypeptide to give you a functional protein, then that protein is always remains in a quaternary structure, and quaternary structures are again remain bound by each other with some bonds. Okay. Then in a quaternary structures, you have two types of proteins. One is homopolymer and another is heteropolymer. Okay, this we have learned. Now, question comes: how to determine protein structure? Okay, now question is there: how to determine protein structure? जब भी हमको किसी को प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर पता करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डायमेंशनल को पता करना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी 3D स्ट्रक्चर, then there are some steps are there. Okay, now what are the steps that we will see first? See, whenever you are starting to determine a 3-dimensional structure of any protein, we should know about its gene first. Okay, we should know about its gene, because if you don't know about the gene, then probably you will not be able to determine its 3D structure. Hence, it is very important to have a gene with your. Okay, so before a gene, you should know the cell. That is very obvious that you know the cell. Cell means the organism from which you wanted to isolate. So after getting a cell, you should know the gene of the protein, okay, for which you wanted to determine 3-dimensional structure. Okay. Now why this is so? Why this is important, that I will let you know. Now what happens? Protein gene expression is very important. Okay. Gene expression is what? To make any 3D structure of the protein, we should have a gene expression analysis first. Now, whenever I am saying gene expression, this is very important. What happens whenever any cell produces any protein? Okay, it remains under control. Okay, it remains under control. That is what is known as gene expression. They always remains in a control. So, cell will not overproduce. Okay, cell will not overproduce any protein. Cell will not produce any protein. अगर सेल कोई भी सेल ओवर प्रोड्यूस नहीं करेगा कोई प्रोटीन को, तो वो कंट्रोल में है, राइट? और ये बहुत हमारे लिए टफ चीज है, क्योंकि अगर इफ आई वांट वन प्रोटीन ऑफ द सेल इन हाई क्वांटिटी, मान के चलो कि कोई मुझे प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में चाहिए जो सेल के अंदर है, और मुझे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए. So what will happen? So whether cell will produce it, सेल प्रोड्यूस करेगा क्या? अगर मुझे किसी सेल से कोई प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो सेल खुद बना लेगा क्या? आंसर दीजिए कोई. Whether if I want one protein from the cell, जिसका मुझे 3D स्ट्रक्चर पता करना है, तो वही सेल उसको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा क्या? मान के चलिए कि आपकी बॉडी का मुझे इंसुलिन चाहिए चेक करने के लिए, 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आपकी बॉडी उसके लिए उसको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगी क्या मेरे लिए? नो, वो बनाएगी नहीं, वो तो कंट्रोल में है, वो आपको थोड़ी सुनने वाली है. सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है 3D स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वो होती है आपको क्या चाहिए?
बल्क प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रोटीन आपको जिसका आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है उसका क्वांटिटी बल्क में चाहिए, ठीक है, यू वांट अ बल्क प्रोटीन ऑफ दैट. So now how to produce a bulk protein, because your cell is not producing in high quantity. This is a question then. So हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उसका CDS ढूंढना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली उसका क्या ढूंढना पड़ेगा, mRNA. यस, हम उसका mRNA ढूंढेंगे. mRNA ढूंढना प्रोसेस आसान है. क्या करेंगे, सेल में से क्या निकालेंगे, सेल को बर्स्ट करके क्या निकालेंगे, जीन भी निकाल सकते हैं वैसे, पर अगर हमको mRNA चाहिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, RNA, राइट. जीन भी निकाल सकते हैं अगर करना है तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या निकालते हैं, RNA. और RNA के अंदर कौन है, mRNA. अब mRNA होने के बाद में हम उस mRNA को कन्वर्ट कर देंगे इसमें cDNA. समझता है ना, कौन सा PCR लगाना पड़ता है, पढ़ा तो होगा, कौन सा PCR करते हैं, mRNA से cDNA में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा PCR करते हैं, मैंने पढ़ा होगा ना, mRNA से cDNA बनाना है आपको तो कौन सा PCR करते हैं, भूल गए, याद है, अभी तो नाम बताओ, फुल फॉर्म, RT-PCR. फुल फॉर्म बताओ. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर. इतना इतना खुद को ये मत करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा ना, ये तो याद रहना चाहिए. mRNA से cDNA में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर इस्तेमाल करते हैं. सो अब हमारे पास कौन है, cDNA, राइट. cDNA का हमारे पास में सीक्वेंस है, ठीक है. सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इसी से बनता है, राइट. किसके बेसिस पे पता चलेगा, ORF के बेसिस पे ना, ओपन रीडिंग फ्रेम से पता चल जाएगी कि हाँ हमारा प्रोटीन बनाता है. सो अब क्या है, आपके पास में cDNA अवेलेबल है. cDNA का जीन फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, राइट. फिजिकल फॉर्म समझ रहे हैं ना, यानी बॉटल में है, ट्यूब में है आपके पास में, सीक्वेंस तो है ही, और वो फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है. आप क्या करोगे फिर, उस cDNA की क्या बनाओगे, क्लोन, राइट. क्लोन्स यानी उसकी कॉपीज बनाओगे. कॉपीज बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, किसी भी डीएनए की कॉपी बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्लोनिंग. क्लोनिंग. हाँ, क्लोनिंग भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले उसकी कॉपीज बनानी पड़ेगी ना. एम्प्लीफिकेशन. हाँ, एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा ना, यानी क्या करना पड़ेगा, कौन सी मेथड, पीसीआर. हाँ पीसीआर. पीसीआर करेंगे, पीसीआर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कॉपीज आ जाएगी, ठीक है. तो हमारे पास बल्क सी, हमको पहुंचना कहाँ है, यहाँ है ना, 3D स्ट्रक्चर तक. और हम कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, देखो, जीन जीन या एमआरएनए से सीडीएनए पहुंचे, सीडीएनए से पीसीआर किया, फिर इसकी कॉपीज मिली आपको, ठीक है. अब आपके पास में सीडीएस की डीएनए कॉपी है, राइट. सीडीएस की डीएनए कॉपी है ना हमारे पास में, अल्टीमेटली कौन है, सीडीएनए, राइट. आ गया है आपके पास में ये सीडीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि जिस सेल का आपको प्रोटीन चाहिए उसका आपने अभी क्या निकाल कर रखा है, क्या है आपके पास अभी, सीडीएनए. हाँ, याद रखो, हमको पहुंचना कहाँ है, 3D स्ट्रक्चर. 3D स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, प्रोटीन से 3D स्ट्रक्चर तक पहुंचना है.
पर अभी हमारा जो सेल है उसका अभी हम कहाँ तक पहुंचे, सी डीएनए तक। सी डीएनए का अच्छा कॉपी बहुत ज्यादा बल्क में है ना, क्योंकि आपने अभी पीसीआर किया ना, उसका बहुत सारा कॉपी बना लिया, बल्क में वो अवेलेबल है सी डीएनए। अब जब सी डीएनए आपके हाथ में आ गया है, आप क्या करोगे, ये चीज समझ लो। जो सेल से हमने उसको निकाला है, उसका सी डीएनए हमने क्यों निकाला, इसका अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया। सबसे पहली बात है कि ये सीडीएनए जो है अंडर कंट्रोल होता है। अंडर कंट्रोल होने के कारण वो हमेशा लो प्रोटीन ही बनाएगा, लो प्रोटीन बनाएगा जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बल्क प्रोटीन चाहिए। ये एक पहला रीजन है। दूसरी बात और एक चीज है, जो सेल हमने इन्वेस्टिगेट की, चलो मान के चलते हैं, वो कौन है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये क्या करता है, एंथ्रैक्स कॉज करता है। तो मैं लेबोरेटरी में बैसिलस एंथ्रेसिस ग्रो नहीं कर सकता, है ना। तो ये ऐसे इसलिए करा जा रहा है, सीडीएनए इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो सेल है, जो होस्ट है, वो एक तो पैथोजेनिक रह सकता है, दूसरी बात है कि वो अपने सारे जीन्स को कंट्रोल में रखता है, इसलिए प्रोटीन भी कंट्रोल में रखेगा। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बॉडी से मैंने निकाल लिया है सीडीएनए। ठीक है, ये आपको समझा। अब सीडीएनए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हूम, सेल। मान के चलते हैं यहाँ पे बैसिलस एंथ्रेसिस का एक सीडीएनए हमने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम उसका क्लोनिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्लोनिंग। सीडीएनए की क्लोनिंग करनी पड़ेगी। सीडीएनए को जब क्लोन करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि सीडीएनए को किसी वेक्टर में पुट किया जाता है। ठीक है, सीडीएनए को किसी वेक्टर में पुट किया जाता है। तो जब किसी वेक्टर में आप पुट करते हैं तो वो वेक्टर जो है, हमको कौन से टाइप का वेक्टर लगेगा बताइए, क्लोनिंग वेक्टर लगेगा कि एक्सप्रेशन वेक्टर लगेगा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वेक्टर, कौन सा, एक्सप्रेशन, पक्का, एक्सप्रेशन। क्यों, सर क्लोनिंग वेक्टर लगेगा ना। हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, प्रोटीन। तो हम कौन सा वेक्टर ले, हाँ, एक्सप्रेशन वेक्टर। वेरी गुड, एक्सप्रेशन वेक्टर लेना पड़ेगा ना। क्लोनिंग तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है ना, पर हमको क्योंकि इस सीडीएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन चाहिए, इसलिए उसका हम हमेशा एक्सप्रेशन वेक्टर लेंगे। अब हमेशा याद रखिए एक्सप्रेशन वेक्टर, वेक्टर आपको सबको पता ही है, मैं आपको और भी समझाऊंगा वेक्टर्स के बारे में। ये सेशन अभी ये खत्म होने के बाद एक्सप्रेशन वेक्टर भी देखेंगे कि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है। एक्सप्रेशन वेक्टर में जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन, ठीक है, उस प्रमोटर रीजन के सामने आप अपना क्या कर देते हो, इस सीडीएनए को पुट कर देते हो, समझा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, प्रमोटर रीजन फॉलोड बाय सीडीएनए फॉलोड बाय ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा, देन देयर विल बी अ सिलेक्शन मार्कर। ठीक है, इस तरह से रहेगा। फिर, अ, उसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं। ठीक है, वो सब पुट करके अल्टीमेटली आपका वेक्टर अब क्या हो गया है, क्लोन इनटू वेक्टर, यानी क्लोन हो गया एक प्रकार से, यानी वेक्टर को आपने क्या कर दिया है, काइमेरिक। ठीक है, काइमेरिक यानी अगर आपने वेक्टर के अंदर कोई फॉरेन डीएनए डाल दिया, यानी सी डीएनए डाल दिया, तो काइमेरिक हो गया। यानी अब आपके पास में वेक्टर जो है, वेक्टर विथ कौन है, सी डीएनए, राइट। और ये वेक्टर कौन से टाइप का है, एक्सप्रेशन वेक्टर है। एक्सप्रेशन वेक्टर विथ सी डीएनए इज नाउ रेडी। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन है, सेल में से हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, और अब हमारे पास कौन है, समझ रहे हैं क्या, कहां तक पहुंचे हैं हम अभी, कहां तक पहुंचे,
वेक्टर विथ cDNA। हाँ, वेक्टर विथ cDNA। सेल से हमने शुरुआत की, हमने वहां से सबसे पहले cDNA को निकाला, cDNA को हमने क्लोन किया, कॉपी किया बाय पीसीआर, फिर उसको एक्सप्रेशन वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, काइमेरिक बना दिया, यहां तक अब हम पहुंच गए। इसका ये क्यों किया, इसका रीजन क्या था बताएंगे कोई? वेक्टर विथ cDNA क्यों? क्योंकि हमें क्योंकि हमें बल्क प्रोटीन चाहिए। वेरी गुड। हाँ, समझा ना, ये एम हमको पता रहना चाहिए हमेशा। वेरी गुड। हमको पता है कि अब हमको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, इसलिए हमने उसको cDNA में डाल दिया। अब ये जो वेक्टर विथ cDNA है, यानी उसको हम काइमेरिक सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है, इसको हमको पुट करना पड़ेगा, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। विल ट्रांसफॉर्म इट वन इन व्हाट, इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे बताइए? काइमेरिक सीक्वेंस बैसिलस सेंस नहीं, उसके अंदर डालना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके अंदर डालेंगे तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, लेबोरेटरी में हम उसको ज्यादा अमाउंट में ग्रो नहीं कर सकते हैं, बराबर है आपका, पर बैसिलस एंथ्रेसिस नहीं रहेगा। एक होस्ट में पुट करेंगे जो सेफ हो, जैसे इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई। यहाँ पे एक चीज और एक ध्यान में रखिएगा, ये होस्ट जो है दो टाइप के होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले और करने वाले, ठीक है। आपका जो प्रोटीन है, जो आपको बनाना है, ये प्रोटीन अगर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाता है, यानी उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लगता है, तो आप उसको इकोलाई में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको उसको जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करता है उसमें करना पड़ेगा, जैसे यीस्ट हो गया या फिर सेल लाइन्स हो गए, ठीक है, इनमें आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा चीज याद रखिएगा। तो हमारा काइमेरिक सीक्वेंस हमने किस में ट्रांसफॉर्म करना है, होस्ट में। होस्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब उस होस्ट के अंदर, होस्ट इज नाउ पॉजिटिव विथ chimeric sequence, right? The host is now positive with the chimeric sequence, और ये होस्ट जो होता है अंडर क्या होता है, रेगुलेशन, अंडर रेगुलेशन ऑफ यूजर, यानी जो साइंटिस्ट होता है उसके कंट्रोल में होता है ये होस्ट। ये जो काइमेरिक सीक्वेंस है, काइमेरिक सीक्वेंस विच इज अ वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये एक्सप्रेस करना शुरू कर सकता है, ठीक है, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इनसाइड ऑफ द होस्ट एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ठीक है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, अगेन अंडर कंट्रोल, ठीक है, ये अगेन अंडर कंट्रोल है। और ये किसके कंट्रोल में, अब सेल के कंट्रोल में नहीं है, वो किसके कंट्रोल में बताइए? ये जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है अब किसके कंट्रोल में है, बताएंगे? पहले जो प्रोटीन था वो किसके कंट्रोल में था, सेल के कंट्रोल में था। अभी भी तो सेल के कंट्रोल में दिखता है, पर है क्या, अभी भी वो जो, सर हाँ सर वेक्टर के कंट्रोल में होगा। नहीं, वेक्टर के भी कंट्रोल में नहीं है। यूजर, हाँ, यूजर, यूजर यानी कौन, होस्ट, नहीं, रिसर्चर, साइंटिस्ट, रिसर्चर के कंट्रोल में है वो, ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर वो यूज करते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड वेक्टर्स, सुना होगा ये वर्ड, स्ट्रेस इंड्यूस्ड वर्ड। जैसे आपका होस्ट, यानी आपका होस्ट कौन है अभी यहाँ पे, इकोला, हाँ इकोला है ना, आपका होस्ट जो है वो इकोला है, और वो इकोला के अंदर में वेक्टर है आपका,
वेक्टर विथ cDNA। तो ये जो वेक्टर विथ cDNA है, जो वेक्टर है, ये स्ट्रेस इंड्यूस वेक्टर है। तो मान के चलते हैं कि इस तरह का वेक्टर है जो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस अगर मीडिया का टेम्परेचर कर दिया, ब्रॉथ का टेम्परेचर कर दिया, तो ये वेक्टर क्या हो जाता है, ये वेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिवेट। रिजल्टेंट इसका जो प्रमोटर है, there is a network issue, 1 minute। स्क्रीन दिख रही है? Yes. नहीं दिख रही? आ गई? हाँ sir. ओके। तो आपका जो वेक्टर है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड वेक्टर है। तो क्या करेंगे, वंस विल गिव द 40 डिग्री टेम्परेचर टू द मीडिया जिसके अंदर आपका होस्ट सरवाइव कर रहा है, तो वो वेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन। क्योंकि जो प्रमोटर है, द प्रमोटर एक्ट्स ऑन 40 डिग्री, ठीक है। जैसे 40 डिग्री उसको पता चलेगा टेम्परेचर है, वो एक्ट करना शुरू कर देगा। एंड एज सुन एज आई विल रिड्यूस दैट टेम्परेचर टू 30 डिग्री, तो वो बंद कर देगा, प्रोटीन बनाना बंद कर देगा। सो रिजल्टेंट क्या होगा कि जितना समय मैं उसको 40 डिग्री पे रखूंगा उतना क्या बनते जाएगा, क्या बनते जाएगा, प्रोटीन। समझा? जितना टाइम 40 डिग्री टेम्परेचर पे रखूंगा उतना उतना वो प्रोटीन बनते ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर 30 कर दूंगा तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनना बंद। क्लियर? सो आई कैन कंट्रोल, नाउ आई कैन control the amount of protein to be synthesized, right? तो ये हम आराम से कंट्रोल कर पाएंगे कितना अमाउंट आपको बनाना है। क्लियर? सो नाउ योर होस्ट सेल हैज प्रोड्यूस्ड हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड प्रोटीन, है ना। अब उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पड़ा हुआ है। देन वी व्हाट विल डू, विल लाइस द सेल। जैसे मैं लाइस करूंगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन जो होगा वो मेरा आउट हो जाएगा। ना इसमें 50% से ज्यादा जो होगा वो मेरा प्रोटीन रहेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने उसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है, उसके बॉडी के खुद के भी प्रोटीन रहेंगे और आपका जो प्रोटीन रहेगा वो 50% से ज्यादा रहेगा। तो जो फ्रैक्शन मिलेगा ना, जो फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन विल बी रिच इन द प्रोटीन ऑफ योर इंटरेस्ट। ठीक है? फ्रैक्शन समझता है ना, जैसे हम उसको तोड़ेंगे उसका जो फ्रैक्शन मिलेगा वो, फिर आप उसको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर लेंगे। एफिनिटी समझती है आपको? एफिनिटी यानी वो अट्रैक्ट करता है उसको। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से आप उसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। वो करने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, एंटीबॉडीज। एंटीजन कौन रहेगा, एंटीजन कौन रहेगा इसमें, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में एंटीबॉडीज लगाते हैं ना, तो उसमें एंटीजन कौन रहेगा, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी आप बना के रखोगे पहले, और फिर वो एंटीबॉडीज यहाँ फिट करके रखी रहेगी। रिजल्टेंट व्हाट विल हैपन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। समझा क्या कॉन्सेंट्रेशन कि नहीं समझा? देखिए आपका सेल आपने तोड़ दिया ना, तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 50% से ज्यादा प्रोटीन आपका इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि वो आपके वेक्टर ने बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाया। फिर वो प्रोटीन को मुझे बाकी प्रोटीन से अलग करना है, क्योंकि बाकी के प्रोटीन तो कंटामिनेशन है, मुझे उनके साथ में कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट उसको निकालना है और बाकी को फेंक देना है। वो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी।
एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से जैसे ही हम रन करेंगे, आपका जो ये प्रोटीन है जो जो ज्यादा अमाउंट में बना है, जो इंटरेस्ट का है आपका, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? एंटीबॉडीज से। ये एंटीबॉडीज इसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, इसलिए आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इससे इंटरेक्ट करेगा और अटैच रहेगा, बाकी के सारे प्रोटीन्स वॉश आउट हो जाएंगे। क्लियर? रिजल्टेंट आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेट। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हमने क्या किया? उसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद फ्रैक्शन जो रहेगा ना, जो आपको फ्रैक्शन मिलते हैं उसमें छोटे 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 5-5, 6-6 ml के एलिक्विड्स मिलते हैं। हर एक फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज। एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन उसमें मिला है या नहीं मिला है। जिस फ्रैक्शन में एक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोटीन की, वो आपके लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव। आपके लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर एक्टिविटी कैसे पता करेंगे? मान के चलिए कि आपको एक प्रोटीन निकालना है जिसका नाम है अमाइलेज, ठीक है, तो अमाइलेज को क्या देंगे? हम स्टार्च दे देंगे। अगर अमाइलेज को स्टार्च दे देंगे तो वो क्या करेगा? उसको हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज कर देगा, तो अगर मैंने स्टार्च एनालिसिस करनी है, ठीक है, स्टार्च एनालिसिस करनी है या फिर ग्लूकोज एनालिसिस करनी है, तो मुझे दिखेगा कि ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ गई, इसका मतलब है कि अमाइलेज है वहां पे। अगर अमाइलेज है तो ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि उस फ्रैक्शन में मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फ्रैक्शन कब उठाएंगे? अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहां तक जो प्रोसेस थी लाइस होने के पहले तक के, यहां तक प्रोटीन, उसके ऊपर जब देखते हैं तो प्रोटीन कहाँ था? किसके अंदर था? सेल के अंदर था। तो सेल जो है वो उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देता है, ठीक है, वो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देता है, यानी हर प्रोटीन को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देता है, और उसके कारण आपका प्रोटीन जो है वो स्टेबल रहता है, स्टेबल फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेबल फॉर स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर मेंटेन करता है। पर जैसे ही आप उसको तोड़ देते हो ना, इट कम्स इन विट्रो, यानी यहाँ तक जो सिस्टम है, ये कौन सी सिस्टम है बताएंगे? राइट, इन विवो। इन विवो है। और जैसे आपने यहाँ पे बाहर अंदर से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ आ गया इन विट्रो, ठीक है। आपको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है? 3D structure of protein. हाँ, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक पहुंचना है, यानी उसका शेप मेंटेन रहना चाहिए, राइट। अगर उसका शेप डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आपने उसको सेल के बाहर निकाला है, तो आपका जितना भी एनालिसिस है वो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। ये समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो प्रोटीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अब आप उसको इन विट्रो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इसलिए पॉसिबिलिटी ये है कि कभी कभी आपका 3D स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, यानी उसका नेटिव स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई और ही स्ट्रक्चर फॉर्म वो कर लेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आप उसको इन वाइवो से इन विट्रो निकालोगे, आपको उसको किसी बफर में रखना पड़ेगा, राइट। आपको किसमें रखना पड़ेगा? बफर, ठीक है। और बफर जो होता है प्रोटीन वाइज वेरी करता है, ठीक है, प्रोटीन वाइज वेरी। तो सबसे पहले ही आपको स्टडी करके रखना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन कौन से बफर में स्टेबल रहता है, ठीक है। फिर भी चांसेस होते हैं कि आपका प्रोटीन स्टेबल ना रहे, ठीक है। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। फ्रैक्शनेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गई, उसके अंदर का बफर हो गया, इससे कहीं आपका प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बफर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब
अब हम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, पहुंच गए क्या प्रोटीन तक, पहुंच गए ना। कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में अब हमारे पास में प्रोटीन है, ठीक है। सो नाउ वी हैव रीच्ड फर्स्ट फेज, हमारे पास फर्स्ट फेज आ गया जहां पे हमने हमारे प्रोटीन को टेक्निकली इन हाई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। और ये हमारी सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ तक हमने उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। अब अगला काम है उसको कंफर्म करना। आप चाहो तो उसको यहीं पे कंफर्म भी कर सकते हैं मार्केट ऑफ करके, समझता है ना, या फिर सीक्वेंसिंग करके, माइक्रो सीक्वेंसिंग करके, ये सब टेक्निक से आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो तो आपने सेटिस्फाई कर दी। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या थी, प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है। हाँ वो भी एक जरूरी है, ठीक है, राइट है। प्रोटीन स्ट्रक्चर या स्टेबल प्रोटीन चाहिए, है ना, प्रोटीन शुड बी स्टेबल। सेकंड, So in bulk amount. यस इन बल्क अमाउंट, ठीक है। थर्ड, थर्ड आपको उसका नेचर पता रहना चाहिए, ठीक है, वो कौन से टाइप का है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ याद रखिए, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो है, हमने तो बोल दिया कि चलो आप यहाँ तक वो सब चीजें कर सकते हो। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी क्या, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स है। क्या है, एसोसिएटेड। एसोसिएटेड यानी ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन नाम ही बताते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी शुगर के साथ लिंक्ड है, लिपो यानी लिपिड के साथ लिंक्ड है। तो ये प्रोटीन अकेले नहीं है, ये प्रोटीन अकेले काम नहीं कर रहे हैं, दे वर्क इन अ ग्रुप, ठीक है, दे वर्क इन अ ग्रुप। जैसे लिपोप्रोटीन है तो लिपिड के साथ मिलके काम कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन है तो शुगर के साथ मिलके काम कर रहा है। पर यहाँ तक हमने जो चीज देखी, यहाँ तक हमने जो चीज देखी, इसमें जब हमने किसी यहाँ से देखते हैं, किसी जीन को या किसी सीडीएनए को क्लोन किया तो यहाँ लिपिड को कंसिडरेशन में रखा है क्या, या कार्बोहाइड्रेट को कंसिडरेशन में रखा है क्या? No, sir. नहीं, हमने तो कहीं पकड़ा ही नहीं है उसको, कंसिडर नहीं किया, हम सिर्फ प्रोटीन को देख रहे हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वहाँ पे हल्का सा कंसिडरेशन उसका है, बट एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो प्रोटीन है ये सीडीएनए से बन रहा है। तो जब सीडीएनए से ये प्रोटीन बन रहा है तो उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन उसका नहीं होता है, प्रॉपरली नहीं होता है, तो वो अपना नेटिव शेप नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, ना नेटिव शेप फॉर्म नहीं करेगा। रिजल्टेंट एक चीज याद रखिए, ऑल प्रोटीन्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड फॉर द थ्री स्ट्रक्चर्स। सारे प्रोटीन्स को हम 3D स्ट्रक्चर के लिए एनालाइज नहीं कर सकते। इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन का आंसर इसलिए है, ये है कि सम ऑफ देम रिमेन्स एसोसिएटेड और इन
कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो होता क्या है ना, मान के चलिए लिपोप्रोटीन है, तो लिपोप्रोटीन क्या करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो लिपिड का पार्ट है पूरा, है ना, इसके अंदर कौन है, लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन को फिक्स करता है, ठीक है, एंड रिजल्टेंट बिकम्स लिपोप्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन को प्यूरिफाई कर रहे हो तो ये सब निकाल दे रहे हो यहाँ से, राइट, बचेगा कौन, सिर्फ प्रोटीन। और प्रोटीन जब लिपिड के सिवा रहेगा, विदाउट लिपिड रहेगा, ठीक है, लिपिड हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, लिपिड हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, अरे लिपिड ऑयल को पानी पसंद, हाँ बोलो, हाइड्रो, हाइड्रोफोबिक। फोबिक। हाँ हाइड्रोफोबिक है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बोलना चाहिए। हाइड्रोफोबिक है तो क्या करता है ना, प्रोटीन भी अपने ऐसे अमीनो एसिड्स के साथ में अमीनो एसिड्स लेता है जो कौन होंगे, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और वो ये सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को मिलके लिपिड के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है, इंटरेक्शन करता है। पर अगर जब आप उसको प्रोटीन का लिपिड निकाल दोगे, प्रोटीन के साथ लिपिड का इंटरेक्शन निकाल दोगे, तो ये जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है ना, ये एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज किसको होंगे, बफर को। बफर कौन है, वाटर ऑरेंज। वाटर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन का शेप जो है ना चेंज कर देगा, कौन, ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। होगा क्या, ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के ऊपर में पूरे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स कवर कर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसको बचाना है पानी से। रिजल्टेंट उसका जो शेप है ना, वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और वो नेटिव शेप है क्या उसका, फिर नेटिव शेप नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, हर एक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ कुछ प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ये आपको समझ गया। अब अगला काम, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं, अभी हमारे पास बफर प्लस प्रोटीन ऐसा अवेलेबल है, राइट। इन अ बफर वी हैव अ प्रोटीन दैट टू इन अ बल्क अमाउंट, ठीक है, बल्क अमाउंट। तो ये जो बल्क अमाउंट प्रोटीन है जो बफर के अंदर अवेलेबल है, इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो प्रोसेस करनी पड़ती है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, उसमें एक मेथड है जिसका नाम है, कौन से मेथड से करते हैं बताइए स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कौन से मेथड से करते हैं प्रोटीन का, अरे पढ़ा होगा ना, भूल गए, ऐसे भूलने से थोड़ी होता है। अब याद आ गया, कौन सा है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हाँ, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम किसी भी प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, किसी का नहीं, कुछ ही प्रोटीन का। अब होता क्या है ये देखिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ता है ऑफ प्रोटीन। आपको सैंपल प्रिपेयर करना है प्रोटीन का, वो कैसे करेंगे, राइट नाउ इन योर हैंड यू हैव अ बफर विद प्रोटीन, यानी आपके पास में बफर है जो जिसके पास में प्रोटीन है और वो बल्क क्वांटिटी में है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो बफर है, ये बफर जो है एक्वियस होता है, हमेशा याद रखिए एक्वियस होता है। तो ये एक्वियस बफर जो है, ये आप स्लोली स्लोली इवेपोरेट करेंगे, क्या करेंगे, इवेपोरेट। सो buffer will act like a
सॉल्वेंट, ठीक है। बफर क्या है? सॉल्वेंट। और प्रोटीन जो है वो रहेगा सोल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट यानी आपका बफर और प्रोटीन यानी आपका सोल्यूट, ये दो चीजें अवेलेबल है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बफर यानी सॉल्वेंट इवेपोरेट होते जाएगा, आपका प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन एज अ सोल्यूट क्या होते जाएगा? कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा क्योंकि धीरे धीरे पानी खत्म होते जाएगा। आपने देखा होगा ना, जैसे नमक होता है पानी के अंदर, तो पानी अगर उड़ते गया उड़ते गया उड़ते गया तो एक दिन आपको क्या दिखता है? नमक दिखता है ना। और नमक क्रिस्टल जैसा दिखता है ना, ऐसे क्रिस्टल्स लगते हैं आपको। सेम वही चीज यहाँ कर रहे हैं। हम उसको इतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इतना इवेपोरेट करेंगे कि बफर यानी सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और आपका प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट हो जाने के बाद में दे विल फॉर्म अ क्रिस्टल, दे विल फॉर्म अ क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल जो है ये ये प्योर है, ठीक है। क्या है? प्योर, प्योर फॉर प्रोटीन। बट it also contains, but it also contains trapped water molecules, ठीक है, and buffer molecules। यानी आपके पास में जो क्रिस्टल फॉर्म होगा ना, वो प्योर है एक्चुअली, यानी उसका 99% 95% जो है वो प्रोटीन ही है, ठीक है। सारे प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन बल्क में है वो खुद को क्या कर लिए? क्रिस्टलाइज्ड कर लिए। बट इसके साथ साथ में थोड़े थोड़ा अमाउंट में आपको ट्रैप वाटर भी दिखेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स और बफर मॉलिक्यूल्स भी दिखेंगे, ठीक है। सो नाउ यू गॉट द, आपके पास क्या, कहां तक पहुंच गया आप? कहां तक पहुंच गए? Crystal form of प्रोटीन protein. क्रिस्टल, क्रिस्टल। क्रिस्टल फॉर्म ऑफ प्रोटीन तक पहुंच गया। यानी आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली यहाँ तक, ठीक है। आपने किसी सेल का एक सी डीएनए निकाला, सी डीएनए को क्लोन किया, क्लोन करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने के बाद उसका प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनाने के बाद में उस प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में उसको क्रिस्टलाइज किया। अब आपके पास में एक क्रिस्टल अवेलेबल है जिसके, जो आपके प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का है, ठीक है। अब आपके पास में वो क्रिस्टल आ गया है और आपको कौन सी मेथोडोलॉजी करनी है? X-ray crystallography. यस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हमारे पास क्या आ गया है अभी? Crystal form of protein. क्रिस्टल। So now we are ready. So now we have to go for the एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करता क्या है? इट्स अ मशीन एक्चुअली, ओके, इट्स अ मशीन व्हिच इज हैविंग अ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ऑफ capturing the data of atoms available in a space, available in a space, ठीक है, of three-dimensional arrangement of the cube, ठीक है। क्या है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी? इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको लिख के दिया है। इट्स अ मशीन which is having a system to capture the data of the atoms available in a space of 3D arrangement of the molecule। यानी जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, हर एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो उसका मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। जो जो मॉलिक्यूल है उसके पास में बहुत सारे एटम्स हैं। हर एटम अपना 3D शेप मेंटेन करके है, ठीक है, इन
क्रिस्टल, ठीक है। जो क्रिस्टल हमने बनाया उसमें क्या हो गया कि हर एक एटम जो है आपके मॉलिक्यूल का वो 3D स्पेस में इस तरह अरेंज है कि उसने एक शेप फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है 3D में, हर एक एटम का जो स्पेसिंग होता है ना, हर एक एटम का जो स्पेसिंग है वो 3 वैल्यू से डिफाइन की जाती है, अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल्स, ठीक है। 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। या उसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल का हर एक एटम 3D शेप में मेंटेन्ड है ना। आपने उसका क्रिस्टलाइजेशन किया ना, तो क्रिस्टल ऐसे ही नहीं बनता, ठीक है। एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। आपको समझ लो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेनी पड़ती है। मान के चलते एयरप्लेन आपको लेना है, तो एयरप्लेन में जब आप बैठते हो तो सबसे पहले आप बहुत सारी चीजें बाईपास करके चलते हो ना, बराबर। सिक्योरिटी हो गया, टिकट सेंटर हो गया, फिर फिजिकल चेकिंग हो जाती है, फिर अल्टीमेटली आप एयरप्लेन में बैठते हो, है ना। तो आप एयरप्लेन में भी किसी की बॉडी के ऊपर जाकर नहीं बैठते हो, आप उसकी प्रॉपर अपनी सीट पे जाके बैठते हो, राइट। तो ये है अरेंजमेंट, है ना। आप एक एयरप्लेन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें आपके जो 3 सीट्स या 2 सीट्स है वो एक मॉलिक्यूल है, और उसमें कि आपकी इंडिविजुअल सीट जो है वो एक एटम है। तो आप अपने एटम के हिसाब से बराबर उसी सीट नंबर पे जाके बैठते हो। रिजल्टन उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, यानी सब लोग अच्छे से बैठ जाते हैं। पर आपकी सीट नंबर 55 है और आप 54 पे जाके बैठ गए, और 54 वाला आके देखता है कि अब उसकी सीट पे कोई और बैठा है, तो क्या होता है? झगड़ा, ठीक है। पर आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में या एयरप्लेन में ऐसा नहीं होता, पर रेलवे में बहुत होता है ना। तो रेलवे इज अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, while एयरप्लेन इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो अगर आपका प्रोटीन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, तो सारे एटम अपने को इस तरह 3D शेप में रखेंगे कि उनका रियल नेचर जो नेचर में है, नेचुरल है, वही दिखेगा। अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली अरेंज नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको रियल शेप नहीं दिखाएंगे। तो ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये यही काम करता है। आपके मॉलिक्यूल में के जो हर एक एटम है, जैसे ही वो क्रिस्टल फॉर्म, प्रोटीन आपका क्रिस्टल फॉर्म करना शुरू करता है, तो हर एक एटम खुद को उस 3D स्ट्रक्चर में इस तरह मेंटेन रखता है कि उसके अल्फा बीटा गामा एंगल्स का एक सोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। क्या क्रिएट होता है? सोर्स क्रिएट होता है, और जिसकी मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है? मिनिमम एनर्जी। अगर एक एटम अपने मिनिमम एनर्जी में है, तो दूसरा एटम भी ऑटोमेटिकली मिनिमम एनर्जी में जाएगा। इस तरह से जितने भी एटम्स होंगे वो धीरे धीरे खुद को अपने मिनिमम एनर्जी में रखेंगे। अगर अपने मिनिमम एनर्जी में है, तो सारे सारे मॉलिक्यूल्स भी मिनिमम एनर्जी में रहेंगे। रिजल्टेंट वो जो स्ट्रक्चर है वो भी अपने मिनिमम एनर्जी में रहेगा, और वो उसको कहा जाएगा स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज जो है हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। समझ रहा है ना कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अल्टीमेटली क्या करता है? इट कैलकुलेट्स द अरेंजमेंट ऑफ एवरी एटम ऑफ योर मॉलिक्यूल in a three-dimensional shape when they records the 3 values of each atom known as alpha, beta and gamma angles. उसको x, y, z कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अगर ये सारे आइटम्स का प्रॉपर शेप है, तो समझ जाइए कि आपका प्रोटीन मिनिमम एनर्जी में है, यानी वो नेचर में भी शायद वैसे ही रहता होगा। तो प्रोसेस क्या है? नाउ टेक योर क्रिस्टल, ठीक है। आप अपना क्रिस्टल लेंगे जो प्रोटीन का क्रिस्टल है, एंड यू पुट इट इनटू द
एक्सरे मशीन यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मशीन में आप उसको पुट कर दीजिए. What will happen now in a X-ray crystallography system? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मशीन में एक लेजर बीम होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सेट होती है. वो लेजर बीम जो है, लेजर बीम विल स्ट्राइक ऑन टू दी क्रिस्टल, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, प्रोटीन के क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करेगी. So as soon as this happens, there will be a diffraction of the beam. आपका जो लाइट बीम है, लाइट सोर्स है, उसका क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा. और ये डिफ्रैक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एटम्स अवेलेबल. जो जो एटम्स आपके प्रोटीन के अंदर होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा. हर एक एटम, हर एक एटम बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन अ 3D स्ट्रक्चर उसको डेविएट करेगा, सॉरी इसको डिफ्रैक्ट करेगा इन अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एंगल में उसको क्या करेगा, डिफ्रैक्ट करेगा. एंड जो डिफ्रैक्शन एंगल क्रिएट होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है. और वो रिकॉर्ड करने का काम किसका रहेगा, मशीन का. मशीन क्या करती है, हर एक एटम की 3 वैल्यूज रिकॉर्ड करती है, एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, और उसको अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर को भेज देती है, ठीक है. सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इन सारे डेटा को रिकॉर्ड करके उसका 3D इमेज बनाएगा, ठीक है. 3D इमेज बनाने के बाद में आपको वो अवेलेबल करा देगा. दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है. सो यहाँ तक के हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव तक. सेल, सेल से सीडीएनए, सीडीएनए से कहाँ गए, प्रोटीन, प्रोटीन से चले गए क्रिस्टल, क्रिस्टल से पहुंच गए 3D तक. अब आपके हाथ में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अवेलेबल है. बस स्टोरी यहाँ रुकती नहीं है, इसके बाद में एक और स्टेप आपको करनी पड़ती है. सेल से सीडीएनए बना, प्रोटीन बना, प्रोटीन से क्रिस्टल, क्रिस्टल से 3D स्ट्रक्चर. नाउ यू हैव अ रियल 3D स्ट्रक्चर, है ना. पर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, whether the structure is genuine or not. यानी ये स्ट्रक्चर जेन्युइन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है. शेप क्यों चेंजेस हो सकते हैं बताएंगे कोई, किसी भी प्रोटीन का शेप क्यों चेंज हो सकता है. हमने जो 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया, इसका शेप डिस्टॉर्ट या खराब क्यों हो सकता है, अभी पढ़ा ना हमने. क्यों डिस्टॉर्ट हो सकता है, क्योंकि हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, विट्रो. इन विट्रो, हम बाहर स्टडी कर रहे हैं ना. जब हम बाहर स्टडी कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका नेचुरल अवेलेबल प्रोटीन जो सेल के अंदर है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, उसका शेप खराब हो जाएगा. तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलने के बाद में अगला जो काम होता है वो होता है क्वालिटी असेसमेंट. क्वालिटी असेसमेंट यानी आप उस प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर क्वालिटी पता करेंगे, ठीक है. और ये करने के लिए हम कौन सा एनालिसिस करते हैं बताएंगे कोई, कौन सा एनालिसिस करते हैं, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, कौन सा एनालिसिस करते हैं.
नो आइडिया? कौन इसका एनालिसिस करते हैं? कौन सा प्लॉट एनालिसिस करते हैं? रामाचंद्रन प्लॉट सुना होगा ना? Yes, sir. हाँ, रामाचंद्रन प्लॉट हम एनालिसिस करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हाट इज द अल्टीमेट यूज ऑफ द रामाचंद्रन प्लॉट? ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट क्या करता है? ये बताता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल क्वालिटी. 3D की स्ट्रक्चरल क्वालिटी अच्छी है या नहीं, यानी आपने जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, उसकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी अच्छी है क्या, यानी वो एक्सेप्टेबल है या नहीं. ठीक है, अब ये कैसे पता करता है रामाचंद्रन प्लॉट? थोड़ा समझ लेते हैं. रामाचंद्रन प्लॉट एक्चुअली एक सर्कल है. ठीक है, अगर आप बोलोगे ऐसा थोड़ी, ऐसा रामाचंद्रन प्लॉट तो चौकोन दिखा मुझे, है ना? आपने तो स्क्वायर ही देखा होगा कभी भी रामाचंद्रन प्लॉट. बट रामाचंद्रन प्लॉट क्या है? इट्स अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल है वो. ठीक है, जस्ट लाइक 3D गोल गोल है ऊपर. रामाचंद्रन प्लॉट ने क्या बोला कि एवरी प्रोटीन, ठीक है, एवरी प्रोटीन forms the shape using the secondary structures, right? हर प्रोटीन जब शेप लेता है, वो शेप लेने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. वी नो टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, है ना? एक है अल्फा हेलिक्स, सेकंड इज द बीटा शेप. ठीक है, सो रामाचंद्रन का कहना यह है कि हर प्रोटीन को अगर उसको प्रॉपर शेप लेना है, यानी उसका थ्री डायमेंशनल शेप लेना है, तो उसको अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्रिटेड शीट. तो if protein wants to form the अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अगर प्रोटीन चाहता है कि मुझे अल्फा हेलिक्स बनाना है, then it tries to take few neighboring amino acids to bend in such a way that they will form the helical shape. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए. इफ प्रोटीन वांट्स टू फॉर्म द अल्फा हेलिक्स, यानी अगर उसको अल्फा हेलिक्स बनाना है कुछ अमीनो एसिड्स को मिलके, तो क्या करेगा? then it tries to take few neighboring amino acids to bend in a such way that they will form a helical shape, है ना? अल्फा हेलिक्स बनाना है तो कुछ अमीनो एसिड्स को खुद को अल्फा हेलिक्स की तरह सोचना पड़ेगा ना उनको, इसलिए वो खुद को बेंड इस तरह करते हैं कि वो क्या बनाते हैं? अल्फा हेलिक्स. नाउ दिस bending of amino acids is having some restrictions. ठीक है, अब मैं जब बोल रहा हूँ कि कोई भी अमीनो एसिड को अल्फा हेलिक्स बनाना है तो उसको बेंड होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एंगल में. तो वो जो बेंडिंग है, बेंडिंग हर एक अमीनो एसिड की है, वो क्या है? क्या है? रिस्ट्रिक्शन वाली है, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेंडिंग. आपके घर में जो दरवाजा है वो कितने एंगल तक बेंड हो सकता है? 90, 180, 270 या 360? कितना एंगल बेंड होता है?
कितना एंगल में बेंड होता है? 90 डिग्री, है ना। आगे जाता है, पीछे जाता है, पूरा गोल घूम सकता है क्या अपने उसके डायमीटर से? नहीं ना, उसके उसके रेडियस से नहीं घूम सकता वो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल है, क्योंकि उसके अंदर कौन है? हिंज, है ना। हिंज है, हिंज है यानी क्या है? रिस्ट्रिक्शन। उसी तरह जब किसी ग्रुप के अमीनो एसिड्स को जो आजू बाजू में है, नेबर्स है, देखो ये नेबर्स अमीनो एसिड्स है, ठीक है ना, नेबर अमीनो एसिड्स को बेंड होना है तो वो सारे डायरेक्शन में बेंड नहीं हो सकते, उनको एक टिपिकल एंगल लगता है, ठीक है, टिपिकल एंगल लगता है और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है एक अमीनो एसिड का, मान के चलता हूँ ए है, A1 है, फिर उसके बाजू में A2 है, तो A1 अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो रहा है तो A2 को भी बराबर उसी डायरेक्शन में बेंड होना पड़ेगा, ठीक है, वो दूसरा एंगल नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कौन है? हिंज है, इनके बीच में एक हिंज है, यानी उनको अटैचमेंट है, और उनके अंदर ये हिंज के कारण क्या आएगा? कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ये जो A1 और A2 है, ये किसके अंदर है? अल्फा हेलिक्स के अंदर है, तो ये एक लिमिटेड लिमिटेड एंगल ऑफ रोटेशन ही शोकेस करेंगे, ठीक है, लिमिटेड एंगल ऑफ रोटेशन ही शोकेस करेंगे। यही इन्वेस्टिगेट किया है रामाचंद्रन पर। रामाचंद्रन ने ये ढूंढ के निकाला कि जो प्रोटीन अल्फा हेलिक्स में होते हैं उनके पास में एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल ऑफ रोटेशन है, और जो अमीनो एसिड्स बीटा प्लेटेड शीट में होते हैं उनके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल ऑफ रोटेशन है। तो अगर मैं किसी अमीनो एसिड का एंगल ऑफ रोटेशन पता कर लूं तो मैं उनको ये आसानी से बता सकता हूँ कि वो अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स में स्पैन कर रहा है या बीटा प्लेटेट में स्पैन कर रहा है, समझ रहे? तो अल्टीमेटली रामाचंद्रन ने क्या बताया? रामाचंद्रन ने ये बताया एवरी प्रोटीन फॉर्म्स द शेप, ठीक है, हर प्रोटीन अपना एक शेप फॉर्म करता है, और वो शेप फॉर्म करने के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि किसी ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स को अल्फा हेलिक्स फॉर्म करना है तो उसके जो नेबरिंग अमीनो एसिड्स है वो इस तरह बेंड होंगे कि वो हेलिकल शेप फॉर्म करें, और ये हेलिकल शेप फॉर्म करने के लिए उनके पास में बहुत ही कम एंगल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इसमें क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेंडिंग, वो किसी भी डायरेक्शन में बेंड नहीं हो सकते, इसीलिए वो अल्फा हेलिकल शेप फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे सिटी में रास्ते होते हैं, रास्तों के बेसिस पे ही हम इधर उधर मोड़ करते हैं ना, हम किसी के घर के अंदर से दीवार तोड़ के रास्ता निकालते हैं क्या? जेसीबी लेके घूमते हैं क्या? नहीं, मैं आज इसी घर से तोड़ के बाजू में से निकल जाऊंगा, नहीं, हम बराबर रास्ते से ही जाते हैं ना। तो हम भी वही फॉलो करते हैं जिस तरह से प्रोटीन भी फॉलो करता है, हमने भी बराबर शेप बना के रखा है, रास्ते है, घर है, गाड़ी है, तो बराबर उसका मेंटेनेंस है। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेंडिंग है, रिजल्टेंट। ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेंडिंग जो है ये आपको एंगल ऑफ रोटेशन क्रिएट करके देगा। ये एंगल ऑफ रोटेशन दो टाइप के होते हैं, साई और फाई। तो हर एक अमीनो एसिड जब किसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा तो आपको दो वैल्यूज देगा, साई और फाई एंगल। ये साई एंड फाई एंगल जो होते हैं ये अल्फा हेलिक्स स्पेसिफिक होते हैं, या फिर बीटा प्लेटेड शीट स्पेसिफिक होते हैं, या फिर रैंडम होते हैं, ठीक है। रैंडम कॉइल या शीट्स के लिए भी होते हैं, ठीक है, पर वो रैंडम कॉइल अमीनो एसिड्स है, ठीक है, इसके बेसिस पे। एंड देन अल्टीमेटली उस अल्टीमेटली रामाचंद्रन क्या बताएगा? इफ all your secondary structures
are in a allowed are in a allowed angle of rotation, then routine 3D structure quality is good, and accepted। और अगर आपका एंगल ऑफ रोटेशन परमिट नहीं कर रहा है, प्रॉपरली सेकंड स्ट्रक्चर्स में नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको बोलोगे नॉट गुड, स्ट्रक्चरल क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट सर्वर लेंगे हम एक, मान के चलिए फर्स्ट है, लिख लीजिए आप। रामाचंद्रन प्लॉट सर्वर, आपको यहाँ पे एक फाइल लगती है, मैं आपको बात अभी बता ही रहे हैं हम, तो वहां से सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक फाइल लगती है जिसका नाम है पीडीबी फाइल, प्रोटीन डेटा बैंक फाइल। तो वो चेक कर लेते हैं कि कैसे रामाचंद्रन प्लॉट काम करता है। ये है आपका रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये है आपका अल्फा आई थिंक बीटा प्लेटेड शीट रीजन, ये अल्फा हेलिकल रीजन है और ये बीटा प्लेटेड शीट रीजन है, और ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल रीजन है। ठीक है, तो ये ग्राफ में आपको क्या समझना है, थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा और एक अलग वे से देखते हैं ताकि आपको डायग्राम समझे हुए एग्जैक्टली। तो ये है आपका एग्जैक्ट रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, दिख रहा है आपको 1 2 3 4, 4 टुकड़े हैं इसके। इसमें 3 कलर आपको दिख रहे हैं, रेड, येलो और व्हाइट। ठीक है, समझ लीजिए जहां पे रेड कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये हाईली अलाउड रीजन है, यानी ये सबसे अच्छा रीजन है क्वालिटी के लिए। देन ये जो येलो दिख रहा है, ये जेनरसली अलाउड है, जेनरसली अलाउड यानी ठीक ठाक है, यानी अलाउड, समवॉट अलाउड है। और ये व्हाइट वाला जो रीजन है, ये डिसअलाउड रीजन है फॉर एनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड अगर स्पॉट होता है तो वो किसी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं है, ऐसा अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझा। तो ये रीजन है बीटा प्लेटेड शीट का, ये रीजन है अल्फा हेलिक्स का, और ये है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का। तो देखिए हमने एक प्रोटीन का एनालिसिस यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है रीजन, फिर उसमें ग्रे कलर है, फिर और लाइट ग्रे कलर है। ठीक है, तो ये हाईली अलाउड रीजन है, ये समवॉट अलाउड रीजन है, और एक जेनरसली अलाउड रीजन है। इसमें जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये हर एक ग्रीन स्पॉट एक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये जितने भी स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये उन अमीनो एसिड्स के हैं जिन्होंने 3D डायमेंशनल शेप में बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर अक्वायर किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे जितने भी ग्रीन स्पॉट्स हैं, ये वो अमीनो एसिड्स है जिन्होंने 3D स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, फिर आपको कुछ ऐसे ऑरेंज कलर के भी दिख रहे होंगे ट्रायंगल। ठीक है, ये ग्लाइसिन और प्रोलीन होते हैं। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट ग्लाइसिन और प्रोलीन को अप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है,
समझे? ग्लाइसिन और प्रोलिन को रामाचंद्रन प्लॉट कंसिडर नहीं करता, ठीक है। फिर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो रेड स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो रॉन्गली प्लेस्ड है। क्या है? रॉन्गली प्लेस्ड, यानी इन्होंने कहाँ रहना चाहिए था? एक तो यहाँ रहना चाहिए था, या फिर यहाँ रहना चाहिए था, या फिर यहाँ रहना चाहिए था। पर आपके 3D स्ट्रक्चर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसे अमीनो एसिड्स है जो क्या है? रॉन्गली प्लेस्ड है, यानी उन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का रूल फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके साई और फाई एंगल अलग अलग है। समझ रहे? साई और फाई एंगल अलग अलग है। उन्होंने यहाँ अक्वायर किया, कहीं तो भी यहाँ 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 यहाँ, तो वो एंगल अलग हो गए। एंगल समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए, ये 0 है, इधर जाएंगे तो +180, इधर जाएंगे तो -180। सेम यहाँ पे भी 0, +180, -180, यानी बीच में 60 आएगा, बीच में 120 आएगा, 180 आएगा। तो ये जो स्पॉट होता है ना, ये स्पॉट, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये 60 है, ये 90 है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं 80 के आसपास जा रहा होगा, है ना? 80, यानी उसका फाई एंगल, उसका जो फाई एंगल है वो 80 के आसपास है, दैट टू +80, है ना? +80। और साई एंगल कितना है? इधर में भी +80 है ना, तो ये इसके बीच में 60 था, 90, 110, 110 के आसपास, 110 + 110 साई एंगल होगा, इसलिए वो यहाँ स्पॉट हो गया। और ये जो एंगल है, ये किसी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये सारे अमीनो एसिड्स रॉन्गली प्लेस्ड है, यानी इससे आपकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी खराब हो गई। तो देखिए उसने बोला हाईली प्रेफर्ड ऑब्जर्वेशन शोन इन ग्रीन, आपके 92% अमीनो एसिड जो है वो ग्रीन जोन में है, बोलता है करेक्ट जोन में, है ना? देन ब्राउन ट्रायंगल्स, ये ग्लाइसिन और प्रोलिन है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। तो ये 92 + 5 पकड़ लीजिए, कितना हो गया? 97। 97% जो है आपका अलाउड रीजन में है, ठीक है, और 2% जो है वो डिसअलाउड। तो 98% अगर आपका प्रोटीन या अमीनो एसिड्स अलाउड रीजन में आते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, यानी ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टेंस है, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टेंस है कि हाँ इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, इन 5 और 6 को रिजेक्ट किया जा सकता है। हाँ, फिर आप चेक कर लीजिए कि ये कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो एक्टिव है, कहीं ये एक्टिव साइट के तो नहीं है, कहीं ये कंजर्व डोमेन के तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंजर्व डोमेन्स के नहीं है तो फिर आपको चल भी जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करते हो, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हो जाने के बाद, ठीक है। समझा सबको? यहाँ तक समझा? किसी को क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर, रामाचंद्रन के ऊपर पूछ लीजिए। Sir, why glycine and proline is not applicable? हाँ, उसका जो साइड ग्रुप होता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है हर एक अमीनो एसिड का, वो छोटा होता है ग्लाइसिन और प्रोलिन में, ठीक है। रिजल्टेंट वो कॉन्स्ट्रेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिजल्टेंट वो कोई भी एंगल फॉर्म कर सकता है, इसलिए उसको रामाचंद्रन प्लॉट में कंसिडर नहीं करा जाता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? एक चीज ध्यान में रखिए, देखिए ये मैंने राउंड क्यों बोला था, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ खत्म हो गया, ये एंड है, और यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये गोल है, इसको वैसे पेपर रैप कर दे तो ये पूरा राउंड हो जाएगा। समझा आपको? इसलिए रामाचंद्रन प्लॉट ये हमेशा सर्कुलर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है आपको रामाचंद्रन प्लॉट में? आपको पढ़ाया था क्या रामाचंद्रन प्लॉट किसी ने? रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ाया था किसी ने? अरे पढ़ाया था क्या?
यानी आज तक आपने इसको पढ़ा ही नहीं करा, इसलिए इस तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है वो चीज को, ठीक है। चलिए, तो अब हम कहाँ तक पहुंच गए, हमने प्रोटीन को क्लोनिंग से देख के यहाँ तक बना लिया, ठीक है। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर द 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज यही रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि जो नया टॉपिक है वो पूरा नया है, यहाँ तक हमको बड़ा क्लियर हो गया। ये याद रख लीजिए, ये वेबसाइट आप लिख के रख लीजिए आपके पास में। या फिर आप गूगल में जाके रामाचंद्रन प्लॉट सर्वर भी डालेंगे ना तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। स्विफ्ट करके यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी रहती है, देखिए यहाँ पे भी आ गया, दिख रहा है। इस तरह से आप इसको भी ले सकते हैं, एनालिसिस में सेव हो जाती है और आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडियन भी है, बिग सॉफ्ट बैंगलोर का है, ठीक है। बैंगलोर IISc बैंगलोर ने बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, इंटर, अपलोड फाइल, चूज फाइल। हाँ, अब ये जब कर रहे हैं एनालिसिस में, अभी हमने जो एनालिसिस किया रामाचंद्रन प्लॉट में, उसमें सारे रेसिड्यूज इन्वेस्टिगेशन में डाले, है ना। जितने भी अमीनो एसिड्स है 3D स्ट्रक्चर में सब कंसिडर किए, पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड का ही देखना है, देखो ये 20 अमीनो एसिड है पर्टिकुलर, समझ लो मुझे मिथ्योनाइन का ही देखना है रामाचंद्रन प्लॉट, तो भी आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट बंद हो गई है, एक्चुअली बंद हो गई है, बहुत बार मैंने चेक किया है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का भी लेके देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। यहाँ नहीं है शायद वो ऑप्शन, इनके पास नहीं है, उसमें था पर वो वेबसाइट बंद हो गई। ओके, यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर? ओके, so we'll stop here today and we'll meet again tomorrow. Tomorrow is a very important topic जहाँ पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का पूरा एनालिसिस करेंगे, कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, क्यों एनालिसिस करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं, कंजर्व डोमेन कहाँ होते हैं, ठीक है, पॉकेट्स कहाँ होते हैं, मोटिव्स कहाँ होते हैं, सब देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। कल का टॉपिक मिस मत करिए। चलिए, थैंक यू।